metabolic engineering, and we have so far talked about the production of the amino acids in vitro or in the artificial environment by using the fermentation technology, and what kind of modifications we can do with the producers, and in other words, you can say that what kind of modifications we can do with the strains. For example, it may be E. coli, Lactobacillus, Bacillus subtilis, etc. Because we have talked about that, it could be any of strain, but there are 4 strains which are very important with respect to metabolic engineering, and we have also talked about some reasons due to which these strains are an attractive candidate for the metabolic engineering. And then first we started the production of amino acids. And in the at the start, we talked about why amino acids are important and what is the role of amino acids, and why it is necessary to produce, and why it is necessary to cater the demand of amino acid supply, and what kind of 3 strategies that can be used to produce the amino acid. We have talked about very briefly about these 3 strategies. One was the modification of the CMP, central metabolic pathway. In the second strategy, we talked about the modifications of biosynthetic pathway. And then we figured out how can we modify the transport systems to enhance the production of any product, either it is amino acid or anything else. In the modification of transport system, we looked into the introduction of some multi-drug efflux genes, as well as to avoid the feedback mechanisms. And this was all about it. So if we extend this topic towards some more information, अभी चूंकि हम अमाइनो एसिड प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इस अमाइनो एसिड प्रोडक्शन में we can have different types of amino acids. For example, it depends upon our requirement. If you want to produce a tryptophan, alanine, phenylalanine or anyone. हमने पीछे थोड़ी कुछ एग्जांपल्स में ट्रिप्टोफैन का पढ़ा है, फिनाइलएलानिन का पढ़ा है, इसके साथ साथ हमने कुछ प्रिकर्सर्स पढ़े हैं जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के लिए इन जनरल सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे से बनते हैं. इसके साथ साथ अब हम कुछ थोड़ी स्पेसिफाई करेंगे चीज़ें. फॉर एग्जांपल, हम ये देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स आर देयर which are responsible to produce some specific amino acids. जैसा कि अभी इस एग्जांपल के अंदर बात होगी लैक्टोकोकस लैक्टिस की. So Lactococcus lactis is actually the strain or the bacteria which belongs with the category of lactic acid bacteria, जिसको हम in general lab भी कहते हैं. Metabolic engineering में हम चूँकि बहुत सारी इस तरह की abbreviations यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो lab का मतलब लेबॉर्ट्री नहीं होगा, यहाँ पे lab का मतलब है lactic acid producing bacteria. एंड अभी हम पीछे कुछ एक दो लेक्चर पीछे पढ़ के आए हैं कि लैब जो हैं ये मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो अभी हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि अब हम अगर लैब को मॉडिफाई करना चाहते हैं या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो हम किन किन 2 सिनेरियोज पे उसको अटैक कर सकते हैं और उसके किस टाइप के एंजाइम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं. Among the lab bacteria, Lactococcus lactis is an important candidate for the metabolic engineering, and this is important, and this is engineered to produce the alanine, L-alanine specifically. यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अभी मैं एक लेक्चर पहले भी मैंने ये डिस्कशन की थी कि बहुत सारी जो अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, they are being produced in the L form, not in the D form. तो L-alanine है. अब इसके लिए हम लैक्टोकोकस लैक्टिस में 2 इम्पॉर्टेंट वेरिएशंस कर सकते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट चेंजेस कर सकते हैं. वन इज दैट वी कैन इंट्रोड्यूस the alanine dehydrogenase enzyme. This one, the alanine dehydrogenase, we can introduce that alanine dehydrogenase enzyme into Lactococcus lactis, which is deficient in the lactate dehydrogenase. यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि here is an enzyme lactate dehydrogenase. मैं इस बात को जरा अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पहले हम लैक्टोकोकस लैक्टिस को डेफिशिएंट करेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में, तो हमारे पास हो जाएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट स्ट्रेन. फिर हम इस स्ट्रेन के अंदर एलानिन डिहाइड्रोजिनेज न्यू एंजाइम इंट्रोड्यूस करेंगे. तो यानी 2 काम कर रहे हैं हम इस स्टेप पे. एक तो हम स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं पहले विच इज़ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट या LDH डेफिशिएंट हम उसको कह रहे हैं, और दूसरा हम ये काम कर रहे हैं कि एक
और बैक्टीरिया, the other bacteria which is named as Bacillus sphaericus, इस बैक्टीरिया में एलानिन डिहाइड्रोजनेज जो है ये एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है उसकी. So we would take the alanine dehydrogenase gene from Bacillus sphaericus and we would introduce this gene into Lactococcus lactis. किस में? वो वाला Lactococcus lactis which is already deficient in the LDH enzyme. So my question here is that why there is a need, a requirement to produce the LDH deficient strain first? LDH का या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का क्या रोल, पॉसिबल रोल हो सकता है एलानिन प्रोडक्शन के साथ? एनी आइडिया फ्रॉम एनी वन ऑफ यू? मेरे क्वेश्चन समझ में आया? Am I audible? यस सर सर हो रिपीट सकता कर रहे हैं. ओके, मेरी आवाज़ आ रही है, ये अच्छी बात है. सवाल मेरा ये है कि पहले लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम डेफिशिएंट किया है स्ट्रेन को, व्हाई? व्हाट इज योर स्टैंस ऑन इट? हाँ, मे बी कि अगर हम उसको जो है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंट स्ट्रेन ना करें तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो ज्यादा लैक्टेट बनाए, क्योंकि वो लैक्टोकोकस. अरीबा आपकी आवाज़ आते आते गुम हो गई है. मैं बोल रही हूँ कि अगर वो लैक्टोकोकस लैक्टिस है तो हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट हासिल करना चाह रहे हैं उससे एलानिन, तो हम यस, जो है उसको नहीं करेंगे तो वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनाएगा, वो लैक्टेट ज्यादा कंसंट्रेशन में बनाएगा. दैट्स व्हाई हमने जो है उसमें से लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंट स्ट्रेन उसको बना दिया. अच्छा पहले कोई आप में से, आई थिंक मे बी यू आर राइट, लेकिन मुझे पहले ये आपसे पूछना है सबसे कि व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एग्जैक्टली? एलडीएच का फंक्शन क्या हो सकता है? प्लीज गूगल ना कीजिएगा, आता है तो बता दें. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का फंक्शन क्या हो सकता है? either that is producing lactate or that is converting lactate into something else. What could be the function of lactate dehydrogenase? भाई बायोकेमिस्ट्रीज पढ़ी है आपने, कुछ अंदाजा तो होगा लैक्टेट सर डिहाइड्रोजनेज. लैक्टेट को अदर प्रिकर्सर में कन्वर्ट करता है. What are the other precursors? सर वो नहीं हो. Okay, anyone else? Here I want you to just let me know the function of lactate dehydrogenase exactly. और दूसरा क्वेश्चन फिर ये होगा कि why there is a requirement to produce the LDH deficient strain, और तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि how alanine dehydrogenase will act in this strain. क्योंकि जिस तरह हमारे पास लैक्टिक एसिड साइकिल होता है तो उसमें पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है, तो अगर वो ऑपोजिट होगा तो अल्टीमेटली वापस उसको अपने प्रिकर्सर यानी पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा. और डिहाइड्रोजनेज तो ऐसे ही एंजाइम होता है ना जो जो हाइड्रोजन को एक से दूसरे में मॉलिक्यूल अच्छा में एक ट्रांसफर कर देगा. मिनट, जस्ट कर सकती हैं बात को फिर से? मैं ये बात कर रही थी कि वो लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज है तो इट मीन्स कि वो लैक्टिक एसिड का डिहाइड्रोजनेज है. तो अगर हम उसको डेफिशिएट करेंगे इट मीन्स कि वो अल्टीमेटली उसकी कन्वर्जन को स्टॉप कर देगा. अब हमारे पास नॉर्मली लैक्टिक एसिड साइकिल में पायरुवेट से उसकी लैक्टिक एसिड की पायरुवेट में कन्वर्जन होती है, लेकिन अगर हम इसको स्टॉप कर देंगे पायरुवेट से लैक्टेट की प्रोडक्शन होती है, लेकिन अगर हम इसको स्टॉप कर देंगे तो वो ऑपोजिट हो जाएगा. हमारे पास अल्टीमेटली ज़्यादा पायरुवेट बचेगा और पायरुवेट से आई थिंक सो एलानिन प्रोडक्शन के अंदर हेल्प मिलेगी. तो शायद इसलिए हम उसको डेफिशिएट कर देते हैं ताकि हमारे पास पायरुवेट रहे और वो ज़्यादा लैक्टेट में कन्वर्ट ना हो. यस यू आर राइट. बेसिकली यहाँ पे हमारा पर्पस ये है कि हम पायरुवेट का जो स्टॉक है, जो रिजर्व है, उसको मैक्सिमम रखें, और जो वो अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पे उनको हम बाई प्रोडक्ट्स कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ द लैक्टेट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर, वी वुड कंसिडर दिस लैक्टेट एज अ बाई प्रोडक्ट बिकॉज वी वांट टू प्रोड्यूस हियर द एलानिन. सो यहाँ पे हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि हम किसी तरह से बाई प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करें, मिनिमाइज करें, और जो पायरुवेट जो कि प्रिकर्सर है वो लैक्टेट का भी हो सकता है, वो एलानिन का भी हो सकता है, एंड अदर स्टेप्स. तो हम पायरुवेट की क्वांटिटी को किसी तरह से मैक्सिमाइज करें. तो उसके लिए वी वुड स्टॉप सम अदर एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एंड दैट इज वन ऑफ देम, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. सो वी वुड इंट्रोड्यूस लैक्टोकोकस लैक्टिस व्हिच इज ऑलरेडी एलडीएच डेफिशिएंट, और उसमें फिर हम एलानिन डिहाइड्रोजनेज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एंड देन वी वुड ट्राई टू रीराउट
the maximum carbon flow into the production of the alanine. Which alanine? L-alanine, not the D-alanine. दूसरी यहाँ पे जो story आएगी, we would disrupt the genes which are actually there. For example, अगर आप yeah, this one. We would disrupt the gene which is encoding the alanine resmase. अब मुझे अगला सवाल आपसे ये करना है कि एलानिन रेसमेज इस एंजाइम का क्या फंक्शन हो सकता है? रेसमेज जो क्लास है एंजाइम्स की, व्हाट इज देयर फंक्शन? सर रेसमेज ये पहला वाला पॉइंट की कोई साइकिल वगैरह है तो वहां से बता दे जरा। हाँ, साइकिल नहीं है मैंने साइकिल दिखाऊंगा इसका, ठीक है? अभी मुझे रेसमेज का बताइएगा। एलानिन रेसमेज क्लास के जो एंजाइम्स हैं वो व्हाट इज देयर फंक्शन? सर रेस लिखा हुआ है तो रेस का मतलब तो ये होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो रही है तो शायद ये ऐसा एंजाइम होगा जो स्पीड अप करेगा। वो लेकिन अंग्रेजी अब का वर्ड है रेस। सर हमने पढ़े नहीं हुए रेस में एंजाइम्स, तो आइडिया नहीं है। अच्छा जी, किसी को शहरेज बैठा होगा। शहरेज, एनी आइडिया अबाउट इट? नहीं सर, नहीं पता मुझे भी। अच्छा, जो रेस मेजेस हैं बेसिकली दे आर देयर ये रोटेशन चेंज करते हैं, लिवोरोटेटिव टू डेक्सोरोटेटिव, एल फॉर्म इनटू द डी फॉर्म। सो यहाँ पे जो डी फॉर्म है बेसिकली द डेक्सोरोटेटिव फॉर्म, वो हम डिस्करेज करते हैं कि बैक्टीरिया डी फॉर्म में एलानिन को प्रोड्यूस ना करे, बिकॉज the alanine in the D form that would be consumed by the strain itself, D-alanine is involved in the production of the peptidoglycan. तो अगर D-alanine प्रोडक्शन हो रही है तो D-alanine में हमारे पास जितना एलानिन बन रहा है D-alanine की फॉर्म में अगर बन रहा है तो स्ट्रेन इटसेल्फ उसको यूज करना शुरू कर देगा पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस में। जब भी नए सेल्स बनेंगे they would be requiring some new cellular envelope, and in that case D-alanine that would be used for the production of the peptidoglycan, or ultimately you can say that the cell wall. So racemeses are there to convert the L form into the D form. यहाँ पे हम सेकंड काम ये कर रहे हैं कि we are disrupting the genes which are encoding the alanine racemeses, and we are discouraging the conversion of L-alanine into D-alanine. The purpose behind this is that we would not let strain to use the alanine. L-alanine की form में strain is unable to use the alanine for their peptidoglycan synthesis. तो जब भी strain ने use करना है, strain L form से D form में convert करेगा alanine को फिर peptidoglycan की synthesis में use करेगा. So हम एक काम तो ये कर रहे हैं कि हम बाई प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं बाय creating the deficient strains and by introducing the strain which is responsible to produce the L-alanine. दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि स्ट्रेन खुद से भी एलानिन को यूज ना कर ले, वी आर एक्चुअली disrupting the genes which are there to convert the L-alanine into the D-alanine. So these are the alanine racemeses, and their property is there. They would be able to convert the L-alanine into D-alanine form. तो ये लैक्टोकोकस लैक्टिस के साथ अगर हम ये दो इंजीनियरिंग कर लें तो लैक्टोकोकस लैक्टिस दैट कुड बी एन इम्पोर्टेंट कैंडिडेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलानिन और सिंपल सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे से पायरुवेट से आगे एलानिन प्रोडक्शन. सो दिस वाज अबाउट इट. ये अभी तक हमने अमाइनो एसिड्स का ही पढ़ा है. बस अमाइनो एसिड्स के अंदर हमने लैक्टोकोकस लैक्टिस की इंजीनियरिंग का स्पेसिफिकली एक एग्जांपल आज लिया है कि अगर हम लैब बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जिनमें से एक लैक्टोकोकस लैक्टिस अगर उसकी इंजीनियरिंग करना चाहें तो किन किन पॉइंट्स पे हमारे पास इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है. सो दिस वाज अबाउट इट. We are going, the next topic that we are going to start is the multifunctional organic acids, and we need to produce some organic acids. Organic acids are required for the food Sir? processing. जी सर पिछली साइड पे जाइएगा जरा. ये लें. सर ये जो रेसमेस है वो बेसिकली डी एलानिन से एल में लेके जा रहे हैं. No, एल L को D में. एल को डी में लेके आ रहे हैं. तो सेल जो है ना वो हमारे पास यूज कौन सा करता है? डी वाले को. हाँ, डी वाले को. बैक्टीरिया खुद से डी वाले को यूज करता है. हाँ, तो फिर वो हमें क्या फायदा हुआ अगर हम उसको उसकी यानी कि यूज नहीं करवाना चाह रहे, तो वो भी तो हमें उसको डी की तरफ लेके आ रहा है. नहीं अब बात ऐसा होता है कि आप बीच में कोई ना कोई बात मिस कर जाते हैं तो फिर सारी स्टोरी नहीं बनती आपके लिए. अच्छा, वो जीन को डिस्टर्ब करवा देते हैं ताकि वो ना कर सके कन्वर्ट, है ना? ताकि
एल एलानिन डी एलानिन में डी में कन्वर्ट ना कन्वर्ट हो ना सके। हो। हाँ ठीक है। ओके गुड। ओके। ओके एनी अदर क्वेश्चन अप टू सर दिस ये पॉइंट? मतलब कि हम चाहते हैं कि यूज ना हो डीएलएनए हाँ हाँ, हम और चाहते हैं कि यूज ना एलानिन हो यूज ताकि ना हो। एल एलानिन, हाँ, ताकि उसको बाद में पेप्टाइडोग्लाइकन में कन्वर्ट कर सकें। और अगर वो यूज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। नहीं शहरेज, जस्ट क्लियर योर हेड। देखो यहाँ पे इस केस में आवर टारगेट इज टू प्रोड्यूस द एलानिन। ओके, हम ठीक है। बैक्टीरिया से लेना चाहते हैं एलानिन। नाउ इफ द बैक्टीरियल स्ट्रेन दैट इज प्रोड्यूसिंग एलानिन, और वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 ग्राम एलानिन प्रोडक्शन हो रही है 12 आवर्स में, और उसमें से 5 ग्राम एलानिन स्ट्रेन अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो हमारे पास जो नेट क्वांटिटी आई है वो सिर्फ 5 ग्राम आई है। अच्छा, अब ठीक है। स्ट्रेन एलानिन को अपने लिए कब यूज कर सकता है? व्हेन एवर द स्ट्रेन इज देयर टू प्रोड्यूस द पेप्टिडोग्लाइकन। जब स्ट्रेन पेप्टिडोग्लाइकन प्रोड्यूस करेगा तो उसको एलानिन चाहिए होगा। अब इसमें हमारे पास अच्छी बात यह है कि स्ट्रेन पहले एल एलानिन प्रोड्यूस करेगा, फिर एल एलानिन को डी एलानिन में कन्वर्ट करेगा, फिर डी एलानिन को पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस में यूज़ करेगा। तो अब अगर हम यूँ कर दें कि हम एल एलानिन से डी एलानिन कन्वर्जन को स्टॉप कर दें, ताकि ना एल एलानिन से डी एलानिन बने, ना एलानिन बैक्टीरिया के लिए यूज़ हो, और हमारे पास जो नेट क्वांटिटी है एलानिन की वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इस पर्पस के लिए हमने जीन डिसरप्ट कर दी है, जो कि एलानिन रेसमेज एंजाइम को कंस्ट्रक्ट करती है। क्यों? क्योंकि रेसमेज इज एन एंजाइम विच इज इन्वॉल्व फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल एलानिन इनटू डी एलानिन। ओके, सर एल एलानिन से डी एलानिन जो है वो बनेगा, फिर तो मतलब वो यूज कर डी एलानिन को यूज करता है, तो फिर तो वो करेगा यूज। एल एलानिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शायद बात कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, इसकी कन्वर्जन होगी डी एलानिन में। कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है यहाँ पर? इधर कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेसमेज। ठीक है, एलानिन रेसमेज। अब हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है दैट इज एलानिन, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे एल एलानिन हो या चाहे डी एलानिन हो। ओके, अब जो एल एलानिन है इसके नीचे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, या सेल वॉल लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जो डी एलानिन है इसके सामने मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन, किधर गया, हाँ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ठीक जी। अच्छा, अब हमने हमारा पर्पस अब क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमारा टारगेट ये होगा कि हम एल एलानिन को डी में कन्वर्ट ना होने दें, क्योंकि अगर तो डी में ठीक है, कन्वर्ट ये हो गया तो क्लियर हो गई बैक्टीरिया, बात। हाँ, बैक्टीरिया उसको अपने लिए यूज़ कर लेगा ना, वो हमारे लिए तो प्रोडक्ट बचेगी ना। हाँ जी, ठीक, सही ओके, है। एंड फॉर दैट वी वुड डिसरप्ट दिस एंजाइम जो कि इसके लिए इन्वॉल्व है, और अल्टीमेटली वी वुड बी एबल टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ एल एलानिन। इसके अलावा अगर किसी को यहाँ तक समझ नहीं आई तो ही और शी कैन आस्क अगेन एंड अगेन, बट प्लीज मेक योर हेड्स वेरी क्लियर अबाउट इट। सर एक और सवाल था मेरा कि हमने लैक्टेट की प्रोडक्शन मतलब इंक्रीज करनी है, तो ये जो एलानिन डीहाइड्रोजिनेज है ये लैक्टेट को प्रोड्यूस करवाता है पायरुवेट से। नो, अच्छा, तुम एक काम करना, तो मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले इसीलिए पूछा था कि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का या जो डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम है इन इस फैमिली के जी, एंजाइम्स के रोल का अंदाज़ा है कि नहीं? जो मैंने बात, डीहाइड्रोजिनेज तो वो होते हैं जो हाइड्रोजन को निकालते हैं। हाँ मेरी सुनो ना, जो मैंने बात असेस की है वो ये असेस की है कि आपको एंजाइम फैमिलीज के फंक्शन थोड़े क्लियर नहीं है। नहीं अब है उसमें क्लियर। हाँ, उसमें एक बच्ची ने ये थोड़ा सा इसको समराइज करने की कोशिश की, तो मैंने उसी के बेस पे बात आगे कर दी।
मेरा यहाँ पे ख्याल ये था वैसे कि अगर आप लोगों को डिहाइड्रोजिनेजेस की फंक्शन का नाम पता हुआ तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूंगा जो कि आप अगली क्लास में इसको देख के आएंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिहाइड्रोजिनेजेस, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप ये देखेंगे, अभी लिख लें आप सारे अपने पास लिख लें, मेरा ख्याल है इसको देख ही लें ताकि बातें कुछ क्लियर हो जाएं। एक क्वेश्चन आप देखेंगे अगली क्लास में, देख के आइएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिहाइड्रोजिनेजेस, पूरी फैमिली का रोल क्या होता है नॉर्मली। जैसे अभी ये शेरिस बता रहा है कि हाइड्रोजन रिमूवल है या एनीथिंग एल्स। द सेकंड क्वेश्चन दैट विल बी देयर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज द रोल ऑफ एलानिन डिहाइड्रोजिनेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एलानिन। अब ये तीन क्वेश्चंस देखिएगा, अगर आपको लगे कि आप इसके अकॉर्डिंगली एक लेआउट बना सकते हैं, कुछ चार्ट बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैथवे बना सकते हैं, वो भी ले आएगा। अदरवाइज मेरे पास एक पैथवे है जो कि मैंने आपको इसको दिखाना है, बट स्टिल अगर आपको लगे कि आप पैथवे बना के ला सकते हैं तो ले आइएगा। अगली क्लास में रैंडमली 3-4 लोगों से पूछ लूँगा और फिर हम इस पर डिस्कशन ज़्यादा कंप्रीहेंसिवली कर लेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? सर क्वेश्चन दोबारा बता दीजिएगा। क्वेश्चन एक ये है कि डिहाइड्रोजिनेजेस फैमिली के जो एंजाइम्स हैं, व्हाट इज देयर रोल। नंबर 2, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या रोल है इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट। नंबर 3, अब आ रही है सर, वो सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन बता दीजिएगा दोबारा। ओके, आई डोंट नो यूनिवर्सिटी का इंटरनेट कुछ अनस्टेबल हो रहा है। मेरा पहला सवाल ये था कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिहाइड्रोजिनेजेस, यानी डिहाइड्रोजिनेज फैमिली का क्या रोल है। नंबर 2 ये था कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या रोल है लैक्टेट प्रोडक्शन में। और नंबर 3 क्वेश्चन मेरा ये था कि एलानिन डिहाइड्रोजिनेज का क्या रोल है एलानिन प्रोडक्शन में। ये 3 क्वेश्चंस आपने देखने हैं, ठीक है? हो जाएगा? जी यस सर, सर। कर लें। हाँ, इसको देख लीजिएगा। गुड, आगे चलूँ अब मैं? जी ओके, सो अगला जो हम देख रहे थे, दिस वाज द मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन। और at very start we talked about that multifunctional organic acids, they are required in the in different types of food processings because they may be added in the food as acidulants, as a preservatives, as beverage ingredients, as sweeteners. In some cases the organic acids, they may be added as a sweeteners, and in some cases they may be added as a flavor enhancers. सो इन 3-4 कैटेगरीज की वजह से ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो चुकी, सॉरी इसकी जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स में दे मे बी एडेड एज एसिडुलेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, beverage ingredients, as a sweeteners, as a flavor enhancers, etc. etc. इन सारी वजूहात की वजह से now we cannot rely only on the production of the acidulant organic acids naturally, so we required the production of the organic acid artificially। और हम जब उनकी आर्टिफिशियल प्रोडक्शन के लिए हमें कौन कौन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से स्ट्रेन ऐसे हो सकते हैं जो कि इसको प्रोड्यूस करते हैं, और किन टाइप्स के पैथवेज हम मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर हमें ऑर्गेनिक एसिड्स फूड बायोटेक्नोलॉजी की अप्रोचेस को यूज़ करते हुए स्ट्रेन की मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करके प्रोड्यूस करवाने पड़े तो हम किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगला ये एक लेक्चर जो है हमारा इस पे कंसिस्ट करेगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे भी मेरा एक आप लोगों से सवाल है। आप लोग बायोकेमिस्ट्रीज पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैक्टेट एंड लैक्टिक एसिड, fumarate and fumaric acid, succinate and succinic acid। तो कोई वो बता सकता काइंड्स है है? मेरे ख्याल है। और वो जो है वो लैक्टिक एसिड में से जब एच निकल जाता है तो वो फिर सर हाँ, लैक्टेट प्रोटॉन बन निकले तो जाता फिर है। वो लैक्टेट बन जाता है लैक्टिक एसिड में। अच्छा, हमारे अगले नहीं, मुझे जरा थोड़ा क्लियर करके बताएं फिर से। बता दें sir, removal of proton from formic acid will make it formate, and removal of proton from succinic acid will make it succinate,
and removal of Okay, just अगर acid से simply proton deprotonation. अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि if you have succinate, can you convert it into the succinic acid easily? हाँ कर सकते हैं। या मेरे ख्याल से साथ में प्रोटीनेशन कोई थोड़ा बेसिक मीडियम ऐड करना पड़ेगा। या प्रोटीनेशन करनी है ना आपने। जी if we have this the lactates, fumarates, succinate, they could easily be converted into the respective acids. अब बहुत सारी जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, जो स्ट्रेन्स की एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास in the case of production of organic acids, तो डायरेक्टली ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होने के बजाय, यानी लैक्टिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड प्रोडक्शन के बजाय स्ट्रेन्स आर प्रोड्यूसिंग लैक्टेट, फ्यूमरेट, सक्सिनेट एटसेट्रा। हम फिर सक्सिनेट, फ्यूमरेट, लैक्टेट को पहले आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन के बाद इनकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है यानी कि आफ्टर प्रोसेसिंग आफ्टर द फर्मेंटेशन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। एंड आफ्टर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, व्हिच मीटिंग? मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आज मीटिंग है। और सर छोड़ें, अभी आज मेरी 2 क्लासेस हैं। मुझे ना आप एक ईमेल ड्राफ्ट कर दें, उसके अंदर मुझे डिटेल में लिखते हैं कि आपने पुराना कौन सी स्लॉट्स थी, नई स्लॉट पे आपको कहाँ पे चाहिए, मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। एक लैब में इशू आ रहा है जो वजीर साहब के स्टूडेंट थे ना। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था ना किसी और की जगह देख वो लें। नहीं हो रहा किसी के साथ भी सर, तो उनकी सेल्फ वाली क्लास ही आपने चेंज करा दी। नहीं, क्लास चेंज नहीं कर सकता। आप मुझे उसकी स्लॉट लिख के भेजें, मैं एक दफ़ा खुद से वर्किंग करके फिर देख लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा, मेरी असल में अभी आज 2 क्लासेस हैं। एक मेरी वो कमेटी की मीटिंग है डॉक्टर परवेज साहब के साथ, सो आई वुड नॉट बी अवेलेबल। ओके, तो वो हम फिर रख लेंगे, जिस दिन शेर साहब को याद है उस दिन कर लेंगे। तो आप मुझे बस ईमेल कर दें ताकि मेरे नोटिस में रहे, तो फिर मैं उसको आज आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, very sorry, I'm back again. Am I audible? Yes, sir. Hello? Yes, Okay. अच्छा, so मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि fermentation technology में normally we produce fumarates, lactates and succinates, and then we convert in the downstream processing. और मैंने बड़ी साथ में शायद आपको बताया था जब ऑनलाइन अभी हमारी ऑन कैंपस क्लास थी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है it refers towards the isolation of the product, extraction of the product, and the purification of the product. So if we are getting the product not exactly that we want, जैसे कि हम यहाँ पे lactate ले रहे हैं और हम बाद में हमें उस lactate की modifications करनी है, तो all of this would fall in the process of the downstream. पहले हम upstream processing करेंगे, यानी कि उस upstream processing में हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे और जो वो प्रोडक्ट हमें दे सकता है इजीली, जो हम उससे ले सकते हैं, we would produce that product. एंड आफ्टर द अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमारे पास डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, जिसमें हम आइसोलेशन करेंगे अपने प्रोडक्ट की, एक्सट्रैक्शन करेंगे, प्योरीफिकेशन करेंगे, और उसके बाद हम उसको कमर्शलाइजेशन के लिए अवेलेबल करेंगे। सो नॉर्मली लैक्टेट, फ्यूमरेट, सक्सिनेट एट्सेट्रा प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए बहुत सारी टाइप्स के स्ट्रेन्स जो हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व हो सकते हैं। इकोलाई की अगर हम बात करें तो इकोलाई कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ lactate, fumarate, and succinate. What it does, it does the anaerobic fermentation. और E. coli को जब हम anaerobic conditions में grow करते हैं तो anaerobic fermentation के result में E. coli has capability to produce the lactates, fumarate, succinate along with the ethanol and carbon dioxide. So चूँकि ये anaerobic fermentation है और E. coli से वगैरह, तो डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्शन होगी एथेनॉल की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी, और उसके साथ साथ जो हमारे पास अदर बाई प्रोडक्ट्स हैं फर्मेंटेशन की, लैक्टेट, फ्यूमरेट, सक्सिनेट, दीज में आल्सो बी प्रोड्यूस्ड। अब E. coli जो है ये लैक्टेट, फ्यूमरेट, सक्सिनेट्स को प्रोड्यूस क्यों करता है, इसकी नेचुरल रीज़न क्या है? E. coli used to produce such lactate, fumarate, etc. To cater its energy needs in an anaerobic environment, because you know that whenever the environment is anaerobic, तो Krebs cycle नहीं चल रहा, सॉरी, या ग्लूकोज मॉलिक्यूल की प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली हमारे पास
एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक फर्मेंटेशन के रिजल्ट में लैक्टेट, फ्यूमारेट एटसेट्रा ही प्रोड्यूस होंगे। तो अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए इकोलाई जो है वो इन प्रोडक्ट को सिंथेसिस स्टार्ट करता है। कब स्टार्ट करता है? व्हेन एवर द कंडीशंस आर एनारोबिक। इसके साथ साथ ये कंडीशन जो है दे मे बी द सोर्स फॉर द रीजनरेशन ऑफ NAD। इफ द NAD would be regenerated and then it would be converted into NADH2 and ultimately NADH2 that is also energy reservoir. So E. coli, you can say that to fulfill its energy needs and requirements in the anaerobic environment, it tends to produce lactate, fumarate, succinate. कि हम E. coli को इस वजह से भी हम ग्रो करवा सकते हैं क्योंकि नेचुरली E. coli यूज्ड टू प्रोड्यूस इट्स ऑन इट्स ऑन डिमांड, और हम उस बाद में लैक्टेट, फ्यूमारेट को आइसोलेट कर सकते हैं इजीली फ्रॉम E. coli। तो सबसे पहले अभी हम इन जितने भी मैंने ये नाम लिए हैं, ये लैक्टेट है, ये फ्यूमारेट है, या सक्सिनेट है, या इवन पायरुवेट है जो बाद में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि इन सब के लिए हम कौन से एंजाइम्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस पैथवे को हम मॉडिफाई करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक ही पैथवे आपको दिखाऊँ जिसमें ये सारी चीज़ें बन रही हों, और वन बाय वन हम उसी में डिस्कस करते रहें कि अगर लैक्टेट बनाना है तो किस एंजाइम को एक्टिवेट करना है, अगर फ्यूमारेट बनाना है तो किस एंजाइम को एक्टिवेट करना है। अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड प्रोडक्शन के लिए, तो इसके लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम्स अवेलेबल, इंपॉर्टेंट स्ट्रेन्स अवेलेबल हो सकते हैं, उसमें एन अरेबोस्पाइरलियम, सक्सिनोप्रोड्यूसेंस, दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ स्ट्रेन, एक्टिनोबैसिलस स्पीशी और एंटेरोकोकस स्पीशी। ये तीन टाइप के हमारे पास जो कैंडिडेट हैं स्ट्रेन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सक्सिनिक एसिड। कौन कौन से? एनारेबोस्पाइरलियम, सक्सिनोप्रोड्यूसेंस, दूसरा है एक्टिनोबैसिलस स्पीशी, एंड तीसरा है एंटेरोकोकस स्पीशी के कुछ स्ट्रेन्स हमारे पास। सक्सिनेट प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा वापस उसी पे चलते हैं, सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे पे जो हम पहले पढ़ के आए हैं, उसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। ग्लूकोज में हमारे पास मल्टी स्टेप प्रोसेस, उसके बाद बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बाद पायरुवेट आगे एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए से एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड जो है वो एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, या एसिटाइल कोए से एसिटाइल फॉस्फेट बन सकता है जो कि अल्टीमेटली एसीटेट में कन्वर्ट होता है। इसके साथ साथ पायरुवेट है, पायरुवेट से लैक्टेट बन सकता है हमारे पास यहाँ पे, और पायरुवेट से ही आगे फॉर्मेट या फॉर्मिक एसिड की तरफ पैथवे हम मूव करा सकते हैं, और अगर फॉर्मेट बनेगा तो इसके साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगी। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स पे ATP भी प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग हियर एग्जैक्टली द प्रोडक्शन ऑफ द ATP, सो वुड नॉट बॉदर कि यहाँ पे किस स्टेप पे कितनी ATP प्रोड्यूस हो रही है। हमारा यहाँ पे पर्पस सिर्फ इतना सा है कि वी वुड लव टू प्रोड्यूस द सक्सिनेट, ultimately the succinic acid which is our desired product in this example, और ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है कंप्लीट का कंप्लीट, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट और सक्सिनेट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और इन द सक्सिनेट। अब दिस सक्सिनेट इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो देखते ही पाथवे जो आपकी समझ में आ जानी चाहिए वो ये है कि हम किसी तरह से मिनिमाइज कर दें फॉस्फोइनोल पायरुवेट की कन्वर्जन को पायरुवेट के अंदर। हम मिनिमाइज करेंगे इस कन्वर्जन को, फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारे पास यहाँ पे कमुलेट होना शुरू हो जाएगा, आगे मल्टी स्टेप प्रोसेस है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से सक्सिनेट में कन्वर्जन करें। तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है दैट इज द कंजर्वेशन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और हम क्या करेंगे कि हम किसी तरह से कोई ऐसा यहाँ पे एंजाइम इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी एंजाइम को डेफिशिएंट करेंगे, किसी एंजाइम को स्टॉप करेंगे, दैट इज कन्वर्टिंग PEP इनटू पायरुवेट। तो यहाँ पे पहले हम एक कट लगाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या काम होगा कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, तो जो यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं PEP से सक्सिनेट कन्वर्जन में, इन एंजाइम्स को किसी तरह से एनहांस कर दें। कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं अगले पाथवे में, इनको एग्जांपल इनकी देखते हैं। सो दिस इज द सेम पाथवे विद सम एंजाइमेटिक डिटेल। अब थोड़ा सा इसको वन बाय वन अगर देखने की कोशिश करें, लेट मी मूव दिस बार फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। सो ग्लूकोज, glucose 6-phosphate normally, phosphonol pyruvate से phosphonol pyruvate से pyruvate से acetyl CoA, ethanol and acetate etc.
अच्छा, अब मैं अभी जो कि पिछले पैथन आपको बता के आया हूँ कि फर्स्ट हमारा काम ये है कि हम किसी तरह से पायरुवेट की प्रोडक्शन को कम करें या फॉस्फोइनोल पायरुवेट की इसके रिजर्वायर को इन्हांस करें। इसके लिए एक काम तो ये हो सकता था कि हम यहाँ पर जो इंजाइम इन्वॉल्व है इसको रिड्यूस कर दें या मिनिमाइज कर दें, एक ऑप्शन। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि यहाँ पे जो अभी पिछले ग्राफ पे आपने देखा है कि ये मैंने यहाँ पे डॉटेड एरो था, ये यहाँ पे जो डॉटेड एरो था दिस वन, ये मल्टी स्टेप शो कर रहा था, और अब यहाँ पे ये मल्टी स्टेप जो है ये खोल के हमारे सामने आ रही हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ऑक्सैलो एसीटेट, मैलेट, फ्यूमारेट एंड सक्सिनेट। तो एक काम तो ये हो सकता है कि हम पायरुवेट प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसको इनहिबिट कर दें। दूसरा काम ये हो सकता है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना और इसकी कन्वर्जन जो ऑक्सैलो एसीटेट में हो रही है, इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज द पीपीसी व्हिच इज द फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन, पीपीसी, दैट इज अ पीपी कार्बोक्सिलेज। हम इस एंजाइम को इनहांस कर दें। अब इस पूरे के पाथवे के अंदर आप थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर अगर आपको मैं याद करवाऊं तो इसमें हमने देखा था कि जो सिंगल एरोज हैं, जो सॉलिड एरोज हैं, दे आर शोइंग द वन स्टेप, जो डॉटेड एरोज हैं दे आर शोइंग द मल्टी स्टेप, और यहाँ पे जो बोल्ड एरोज हैं, बोल्ड, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस स्टेप को हमने एम्पलीफाई किया है। यहाँ पे जो एंजाइम मौजूद है हमने उसको एम्पलीफाई किया है। यहाँ पे जो बार लगी है या क्रॉस लगा है इसका मतलब यह है कि हमने इस एंजाइम को यहाँ पे स्टॉप किया। जैसे यहाँ पे बार है, ये बार है, यहाँ पे बार है। तो इस सारे सिचुएशन में आप ये नॉमेनक्लेचर जरा देखिएगा। अब हमारे पास ग्लूकोज से बना फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और हमारे पास पर्पस क्या है कि हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करें सक्सिनेट में। जो दो काम कर सकते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को हम पायरुवेट में ना जाने दें तो मैक्सिमम इधर जाएगा, या हम ऐसा करेंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट वाला जो पाथवे है इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है पीपीसी, इस एंजाइम को एम्पलीफाई कर दें ताकि ये मैक्सिमम पीईपी को ऑलरेडी कन्वर्ट करना शुरू कर दे, और हमें इस एंजाइम के साथ जो यहाँ पे पायरुवेट के लिए रिक्वायर्ड था, इस एंजाइम के साथ हमें कोई भी अल्टरेशन करनी ही ना पड़े। So in this pathway, the first step would be the amplification of PPC. PPC is the PEP carboxylase. PEP carboxylase is required to convert the PEP into oxaloacetate. Okay, तो हम इस एंजाइम को नंबर वन, इस एंजाइम को हमने एम्पलीफाई किया, मैक्सिमम PEP जो है वो ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, पायरुवेट की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया कि यहाँ पे MDH enzyme, here MDH, this enzyme is malate dehydrogenase and that is there to require the production of the malate here. हम इस एंजाइम को enhance कर देंगे। अब जितना भी oxaloacetate बन रहा है that is being converted into malate. malate में इसकी conversion हो रही है, malate से ultimately fumarate बनेगा और fumarate के बाद succinate, that is our product. So ये हमारे पास second strategy या second step हो गया, you can say that, second step 1 and 2. थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये जो पायरुवेट था ये और बहुत सारी जगहों पे इन्वॉल्व है। पायरुवेट से लैक्टेट बन रहा है, हमने इस पैथवे को स्टॉप कर दिया। अब अगर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से कुछ थोड़ा बहुत पायरुवेट बन भी रहा था और वो पायरुवेट कुछ बाई प्रोडक्ट्स में जा रहा था, तो वी एक्चुअली स्टॉप्ड द बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसी तरह से हमने PFLB जीन को स्टॉप कर दिया। दिस इज द जीन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू convert the pyruvate to convert the pyruvate into the formate, because this is the formate lyase. हमने इसको भी स्टॉप कर दिया, हमने इसको भी स्टॉप कर दिया। अब पायरुवेट मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे प्रिजर्व होना शुरू हो गया। ये पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट से मैक्सिमम तो पहले ही हम ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करें, अब वो जो थोड़ा बहुत पायरुवेट बन भी रहा था वो भी अब किसी बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, एंड वी आर प्रिजर्विंग and we are maintaining its reservoir. अब थर्ड लेवल पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि we have introduced an other gene which is called pyruvate carboxylase, PYC, pyruvate carboxylase. This gene is involved in the conversion of pyruvate into oxaloacetate. तो अब हुआ क्या है कि हमने दो काम करके, एक PPC इंट्रोड्यूस करके और दूसरा PYC इंट्रोड्यूस करके we have rerouted all the carbon flow, all the maximum possible carbon flow into the oxaloacetate.
और oxaloacetate is ultimately the precursor for the malate, fumarate and succinate. हमारे पास यहाँ पे टारगेट क्या था? टारगेट था हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ सक्सिनेट. ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? Am I No, audible? ओके गुड. अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और स्टेप वाइज देखते हैं. अब चूंकि यहाँ पे मैंने बताया कि we can introduce the MDH gene which can which can be responsible to produce the malate dehydrogenase, and malate dehydrogenase क्या करेगा कि that would convert this oxaloacetate into malate. अब whenever in the trials we introduced this MDH gene, it was observed that कि हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रही थी malate की, this was enhanced from 12% to 45% सिर्फ इस एक एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाने से. This is a lot of difference. थी कहाँ 45% यील्ड थी. सो एक एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाने से. दूसरा मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताई थी कि हम PYC एंजाइम जो कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है जो ज़्यादा से ज़्यादा पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर सकता है. जब हम यहाँ पे इस एंजाइम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अब ये याद रखिएगा कि ये जो पूरा पैथवे हम पढ़ रहे हैं ये हम इकोलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और ये हम इकोलाई के अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं. ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं MDH, PPC, LDH, PFLB, ये जीन्स हैं बेसिकली जो कि इन एंजाइम्स को कोड करती हैं. दीज आर प्रेजेंट इन द इकोलाई. लेकिन ये जो PYC जीन है, दिस इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन इकोलाई. हम इसकी क्लोनिंग करवाते हैं एक और बैक्टीरिया से जिसका नाम है राइजोबैक्टीरियम एटली और एटली. ठीक है, और एटली से हम PYC जीन लेते हैं. प्लाज्मिड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे. प्लाज्मिड यूज़ करते हैं PTRC99A. दिस इज द वेक्टर which is responsible to introduce the PYC from Rhizobacterium etli into our required E. coli. अब MDH इंट्रोड्यूस करवाने से हमारे पास यील्ड इंक्रीज हुई है 12% to 5%. और जब हमने PYC इंट्रोड्यूस करवाया इसके साथ तो यील्ड वाज आल्सो इंक्रीज्ड अगेन 70% इंक्रीज और आ गया इसमें. तो इसका मतलब ये हुआ कि यील्ड हमारे पास मजीद बेहतर हो गई है इन दो एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करवाने से. यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हो सकती हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं. एक अक्सर टर्म इस्तेमाल होगी अभी आगे यील्ड, और दूसरी टर्म इस्तेमाल होगी प्रोडक्टिविटी. मेरा आपसे सवाल ये है कि डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी? एनी आइडिया अबाउट इट? सर यील्ड जो एक्चुअली जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है और प्रोडक्टिविटी जो उसमें से यूज हो रही है हमारे लिए कितनी प्रोडक्टिव है. नहीं, कुछ और. जो यील्ड होगी वो मेरे ख्याल से इसकी परसेंटेज वाइज इंक्रीज है कि जो पूरी होल जो प्रोडक्ट है उसके अंदर से हमारे पास इतनी परसेंटेज एक स्पेसिफिक जो हमें दे रहा है जिस तरीके से MDH है तो उसके टूवर्ड्स. लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होगी वो मैथ्स की अंदर जो इंक्रीज़ आएगी वो उसकी बेसिस के ऊपर होगा कि वही परसेंटेज जो है अगर हम उसको मैथ्स के अंदर देखें कि इन द फॉर्म्स ऑफ मैथ्स वो कितना इंक्रीज़ कर रहा है तो उसकी बेसिस के ऊपर हम उसकी प्रोडक्टिविटी को देखेंगे. नो, ऐसा नहीं है. परसेंटेज भाई थोड़ी सी होश पकड़ें प्लीज. आई नो सुबह सुबह का टाइम है लेकिन स्टिल प्लीज जाग जाएं. अच्छा, यील्ड क्या हो सकती है? देखें फॉर एग्जांपल हम जरा जनरल बात करते हैं आपको समझाने के लिए. फॉर एग्जांपल जी हम बात करते हैं कि हमने एक इकोलाई के स्ट्रेन को एक फ्लास्क के अंदर लैब में ग्रो करवाया और हमने उस फ्लास्क को इनक्यूबेट किया और उस इकोलाई के स्ट्रेन, इसका मैं नाम रख रहा हूँ स्ट्रेन ए, इकोलाई स्ट्रेन ए. इसको हमने फ्लास्क में ग्रो करवाया. हमने इसको 24 आवर के लिए ग्रो करवाया और जब हमने 24 आवर के बाद देखा तो इस इकोलाई के अंदर फ्लास्क का टोटल मीडिया 1 लीटर था और इस इकोलाई के अंदर 10 ग्राम
सक्सिनेट प्रोड्यूस हुआ 1 लीटर में और 24 घंटों में। अच्छा, अब साथ हम दूसरा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम इकोलाई के बजाय सूडोमोनास यूज करते हैं। सूडोमोनास को भी हमने ग्रो करवाया, सूडोमोनास को हमने ग्रो करवाया 12 घंटों के लिए, सूडोमोनास को हमने ग्रो करवाया 2 लीटर मीडियम में, और जब हमने 12 आवर्स के बाद देखा तो सूडोमोनास ने 2 लीटर मीडियम में हमें 15 ग्राम सक्सिनेट की प्रोडक्ट दी। अब जब इसको कंपेयर करते हैं तो हम ये कहेंगे कि यील्ड दोनों की क्या है। सूडोमोनास की यील्ड है 15%, इकोलाई की यील्ड है 10%। ओके, अब ये हम कंसिडर ही नहीं कर रहे कि सूडोमोनास को हमने मीडियम भी ज़्यादा दिया है, उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ हमने सूडोमोनास को कम टाइम के लिए इंक्यूबेट किया। वी आर नॉट कंसिडरिंग इट। अब जब इकोलाई की बात करते हैं, हमने उसको 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट किया इकोलाई को, और इकोलाई को 24 आवर, लेकिन उसको हमने मीडियम थोड़ा दिया, तो इस वजह से उसकी प्रोडक्ट कम हो सकती है। तो व्हेनेवर वी वुड रिलेट दिस प्रोडक्ट विद इन द ग्राम्स पर लीटर पर आवर। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो इकोलाई था, जो हमारे पास अभी इकोलाई के, मैंने आपको अभी एक बड़ी रैंडम सी एग्जांपल दी है कि इकोलाई के केस में हुआ क्या कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इकोलाई, इट प्रोड्यूस्ड 10 ग्राम सक्सिनेट इन 1 लीटर इन 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं कि एग्जैक्ट प्रोडक्टिविटी कितनी थी इकोलाई की विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द फर्मेंटेशन मीडियम एंड द फर्मेंटेशन सिस्टम। अब अगर हम इसको इस टाइम और फर्मेंटेशन सिस्टम को या साइज को काउंट ना करें तो फिर हम सिंपल कह सकते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी इकोलाई की कम है, सूडोमोनास की ज़्यादा है। लेकिन जब हम इसको पर आवर इस तरह से कैलकुलेट करके देखेंगे तो इट माइट पॉसिबल कि इकोलाई की प्रोडक्टिविटी हमारे पास ज़्यादा निकल आए। So productivity is the yield, you can say that is the product gain with respect to the size of fermentation system per hour. But yield is actually just describing कि हमारे पास net product आ कितनी रही है। So this is the difference, yield and productivity. जब भी हम strains के comparison करेंगे या इस metabolic engineering में हम बहुत सारी examples consider करेंगे अगर, तो हम प्रोडक्टिविटी पे बात कर रहे होंगे कि इस strain की प्रोडक्टिविटी कितनी है। जब हम इसमें एक मिनट, जब हमने इसमें मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने कोई जीन इंट्रोड्यूस करवा लिया है तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी में फर्क कितना पड़ा है। यील्ड को जब हम कंसीडर करेंगे तो वो तो पूरे सिस्टम के हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा कि पूरे सिस्टम में हमारे पास इतनी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दे दिया। बट हो सकता है कि एक सिस्टम ने हमारे पास 10 दिनों में दी हो उतनी प्रोडक्ट, दूसरे सिस्टम ने 5 दिनों में दे दी हो, तो दोनों की यील्ड तो सेम हो गई ना, लेकिन जब हम उनकी प्रोडक्टिविटी काउंट करेंगे तो 5 दिन वाले की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि उसने उतनी यील्ड जो है वो 5 डेज में दिया एज कम्पेयर टू 10 डेज। So this is the difference between yield and productivity. और जब भी productivity को mention करेंगे, we will mention the exact quantity of the product with respect to the size in the liters and in the hours for how many period of time the incubation was performed. Got it? Is that clear to all of you? The difference between yield and productivity. Yes, sir. ये जो P by C जीन आपने बताया, इसका क्या बताया कि ये इकोलाई में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। Yes, इसकी हम क्लोनिंग करते हैं फ्रॉम द राइजोबैक्टीरियम एटली, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, और एटली से हम इस जीन को लेते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने स्ट्रेन के अंदर, और ये हमारे पास जो है यील्ड को 17% तक मजीद बढ़ा देता है। ओके ओके सर। ओके जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? यस। पीवाईसी हम कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द इकोलाई में तो होता नहीं है। फ्रॉम द राइजोबैक्टीरियम एटली, ये नीचे लिखा हुआ है, मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है, और एटली। ओके, एनीवन एल्स? किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, कोई बात जहन में एक वो ना बन रहा हो, फ्लो ना बन रहा हो, और कुछ आपको लग रहा हो कि आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं बोर्ड पे ये चीज़ें बता रहा होता तो हम कुछ ज़्यादा अच्छा सीख पाते, बट स्टिल ड्यू टू द पेंडेमिक कंडीशंस वी हैव टू डू इट ऑनलाइन, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत मुझे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको भी। सो एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? सब मेरा ख्याल नहीं कि मतलब खुल नहीं है अभी, ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा,
ये भी ऐसे ही जाना बिल्कुल। सेमेस्टर। मैंने तो आपको उसी दिन कहा था जिस दिन लॉकडाउन लगने वाला था। अरे क्योंकि पहले भी 2 सेमेस्टर ऐसे ही रगड़े गए हैं, इसका भी यही यस हाल होना है। सर 11 के बाद तो वैसे भी स्टूडेंट खुद चाहेंगे कि लॉकडाउन लग ही जाए, क्योंकि रमजान आ जाना है आगे, रमजान शरीफ को। प्रॉब्लम ये है ना कि हम शॉर्ट टर्म देखते हैं सिर्फ चीज़ें मोइज। यही मसला अभी आ रहा है कि एज ए नेशन वी आर नॉट फॉलोइंग द SOPs। हम सिर्फ इतने लापरवाह हो चुके हैं जिसकी वजह से सब कुछ बंद करना पड़ रहा है ग्रेजुअली। कभी किसी मार्केट में निकल के देख लें, मतलब मास की रेशो क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। 1 साल हो गया इससे गुजरते हुए, अब तो कम से कम इसका ख्याल कर लेना चाहिए। लाहौर में मास्क इस तो टाइम आपने भी नहीं पहना होता। मैं तो मेरे पे एतराज करने की बजाय सिर्फ मेरी बात सुन लो कि फिलहाल हमें we are सर not आपकी able आवाज to कट follow the रही है। SOPs। आई थिंक इंटरनेट अनस्टेबल है यूनिवर्सिटी का आज थोड़ा सा, तो इस अब वजह आ से रही है। हाँ, तो SOPs फॉलो कर रहे हैं ताकि किसी तरह से इसका रेट कम हो। अभी फिलहाल जो लाहौर के अंदर रेट रिपोर्ट हो रहा है, इन्फेक्शन रेट वो 23% है। सर अक्सर सिटी में तो गुजरात वाले बता रहे हैं कि 50% है, जबकि हर 2 में से 1 हो ये रहा है। बहुत ज़्यादा है। और जो UK बेस्ड ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। और still we have to follow the SOPs very strictly, but unfortunately we cannot. Hope for the best. Anything? सर Okay. Anyways, any question in this? Yes. सर Yes. एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, नहीं Mhm. थोड़ा सा मतलब सर आजकल मतलब सुना जा रहा है कि ये जो खुला दूध है ये बंद हो जाएगा। तो सर मैंने ये पूछना था, ये पैकिंग वाला हमारे पास क्यों? दूध होता है जी सर, हम्म पैकिंग वाला जो खुला दूध फूड क्यों बंद हो हमारे जाएगा? पास सर, लाइक उसमें कुछ केमिकल जो केमिकली हम्म मॉडिफाइड दूध आजकल यूज हो रहा है, वो मतलब वो दूध तो नहीं खैर कह सकते, वो शेप ही होती है सिर्फ उसकी। तो उसके अलावा क्या कहते हैं कि प्रॉपर पानी वगैरह यूज हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि पैकिंग में ही सिर्फ दूध मिला करेगा। तो मैंने ये पूछा। यू आर राइट, लेकिन वो पैकिंग भी तो नहीं, वो पैकिंग भी तो खुले दूध की होगी ना, या वो गाय भैंस पैक दूध दिया करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं मतलब अगर नहीं कोई बंदा सर, मिलावट लाइक ऐसा ही है वो सर। ये करना, होगा कि कंपनी से वो क्या कहते हैं वैलिड हुआ होगा ना, हाँ, तो तो उसका। कंपनी भी तो कंपनी लेवल पे ये काम कर सकती है ना। मतलब वट एवर एन इंडिविजुअल इज डूइंग, अ कंपनी कैन आल्सो डू दैट। सो या तो यस ये सर। हो गाय और वो से तो इट इज फिजिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, देन हर जगह पे हमारे लिए ये प्रॉब्लम आएगी ना। अब देखें, कुछ अरसे से कंपेन चल रही है प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि जो खुला दूध है उसका इस्तेमाल जो है वो खतरनाक हो सकता है, तो पैक दूध का इस्तेमाल करें। आप उसकी बजाय लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें कि खुले दूध के साथ उनके क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसको प्रॉपरली किस तरह से पैस्चराइज करना है, या कम से कम रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा करें कि लोग जो हैं खुले दूध में मिलावट के चांसेस कम से कम हो। कि जब हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इसके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार वाबस्ता है। अल्टीमेटली डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरा ख्याल है थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो इफेक्ट होंगे। तो जिसकी वजह से आई थिंक इट माइट नॉट बी पॉसिबल। इसकी वजह से हमारे पास अदर स्ट्रेटजीज जो हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि हम किसी तरह से इस मिलावट के रुझान को कम करें, हम लोगों को एजुकेट करें। अगर उनके पास मिल्क आता है वो बीमारियों से पाक नहीं है या दैट इज कंटामिनेटेड, हाउ कैन डू दे पेस्टिसाइड and how can they use it? इंस्टेड इसमें बहुत सारी फिर हमारे पास वो आ जाती हैं उसको ना, कैपिटलिज्म को लेके बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड इंडस्ट्री टू सेल द पैकेज्ड दूध, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि खुला दूध जो है वो फिजिबल नहीं है। और उसके बजाय यहाँ पे स्टेट शुड प्ले इट्स रोल to maximize the sale of milk in any form which could be pure without any contamination. सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था हाँ कि जो हम पैकिंग दूध यूज करते हैं हाँ उसके लिए कौन से मेथड यूज करते हैं प्रॉपरली उसको पैस्चराइज करने के लिए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस हाँ। करने के लिए या मेंटेन करने के लिए। तो अच्छा, मेरे से उसके किसी ने ना क्वेश्चन किया था, तो
मुझे हाँ, इसका उसमें ना वो बहुत सारे प्रोडक्ट मसले आ जाते हैं, मैं बताता हूँ। उसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक इंडस्ट्री की बात करें तो दे कलेक्ट द मिल्क फ्रॉम रूरल एरियाज, वहाँ से उनके टैंक्स जो हैं वो दूध लेके आते हैं, उस दूध का वो एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस की 2 3 4 नहीं बल्कि कुछ 27 28 टाइप के वो टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर कंटेमिनेशन टेस्ट हैं, उसकी लिपिड कंटेंट है, प्रोटीनेशियस कंटेंट है, और ये सारे टेस्ट करने के बाद फिर उसकी वो प्रॉपर पेस्चराइजेशन करते हैं। पेस्चराइजेशन की हमने डिटेल पढ़ी हुई है ऑलरेडी एक और सब्जेक्ट में, दैट वाज द माइक्रोबायोलॉजी। पेस्चराइजेशन कितने टेम्परेचर पे, अब बहुत सारी इंडस्ट्री जो है दे हैव इंस्टॉल्ड UHT प्लांट्स, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्लांट्स। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्लांट्स क्या करते हैं कि 102 डिग्रीज पे, 103 डिग्रीज पे मिल्क को हीट करते हैं फॉर सम सेकेंड्स, और उसके बाद पेस्चराइजेशन के बाद मिल्क में से फिर जो लिपिड कंटेंट है, जो क्रीम है, उसको सेपरेट किया जाता है। क्रीम सेपरेट करने के बाद फिर जो पीछे हमारे पास स्टफ़ बचता है, चूँकि वो बहुत थिन होता है, सम टाइम अगर उसमें से क्रीम सेपरेट कर लिया तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं कि स्किम्ड मिल्क इंपोर्ट करती हैं। स्किम्ड मिल्क जो है ये काफ़ी सस्ता बहुत सारे कंट्रीज से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का जो स्किम्ड मिल्क है ये बल्क में पाकिस्तान में आता है। तो फिर क्रीम सेपरेट करने के बाद वो स्किम्ड मिल्क जो है वो मिल्क के अंदर मिलाया जाता है, ताकि उसके अंदर जो लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमारे पास कंसनट्रेशन थी, जो प्रोटीनेशियस कंसनट्रेशन थी, वो मेंटेन की जाए। और उसके बाद फिर उसको ड्रिंकिंग मिल्क के तौर पे उसको पैक किया जाता है। फिर अगर स्किम्ड मिल्क उसके अंदर स्किम्ड मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी सी वेरी कर दी जाए, या उसके साथ अदर वाइटनर्स या स्वीटनर्स ऐड किए जाए, तो उसको फिर एज अ टी मिल्क के तौर पे पैक किया जाता है। फिर इसी में से कुछ पार्ट जो है उसको लेके अदर प्लांट्स पे बेबी फार्मूला या इन्फेंट फार्मूलाज में, या उसके साथ फिर उसके अंदर फोर्टिफिकेशन की जाती है डिफरेंट सप्लीमेंट्स की। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन स्टार्ट में जो आप बात जानना चाह रहे हैं वो ये है कि कंपनी पेस्चराइजेशन करती है, UHT करती है, उसके बाद उसमें से क्रीम सेपरेट करती है। क्रीम सेपरेट करने के बाद मिल्क की कंसिस्टेंसी की बेस पे उसमें स्किम्ड मिल्क जो है वो ऐड किया जाता है, और स्किम्ड मिल्क ऐड करने के बाद उसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के बाद उसकी पैकेजिंग होती है, और वो ड्रिंकिंग मिल्क के तौर पर आता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास टेट्रा पैक है वो चूँकि काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रह जाता है। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के मिल्क आते हैं जो कि कुछ पेस्चराइज्ड हैं, कुछ टेट्रा पैक हैं। जो पेस्चराइज्ड हैं दे आर ओनली पेस्चराइज्ड, दे कैन बी मेंटेन एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ फ्यू डेज। जो टेट्रा पैक्ड हैं वो सील पैक हुआ करते हैं, वो 2-3 महीनों तक गालिबन रह पाते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। तो there are a lot of types of product that are being made from the milk, so it's the सर customer's priority. Yes, 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 सर yes. ये जो टेट्रा पैक है मतलब ये इतनी देर तक प्रिजर्व कैसे रहता है? क्या इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं कि रिलेट किया जाता है या फिर किस तरह उसकी ना प्रिजर्वेशन के लिए? उसकी उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक तो यह है कि उसमें उसकी पेस्चराइजेशन इस हद तक की जाती है कि उसके अंदर मौजूद जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इतना वीक हो जाता है कि नॉर्मली whenever we pack the milk into टेट्रा पैक, तो वहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं बेसिकली टेट्रा पैक के अंदर। देयर इज़ नो ऑक्सीजन देयर। सो नॉर्मली बहुत सारे स्ट्रेन्स उस कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते, और इस वजह से टेट्रा पैक जो है इट कैन बी मेंटेन्ड। या इसके साथ साथ हम नॉर्मल फ्लोरा को बिल्कुल ही उसमें से एलिमिनेट कर दें, ताकि नॉर्मल फ्लोरा जो है मिल्क का वो बाद में ग्रो ही ना कर सके। तो इस तरह से इसकी उसके अलावा उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा को की ग्रोथ को मिनिमाइज़ करते हैं या उसको ग्रो होने नहीं देते, जिसकी वजह से ये टेट्रा पैकेजेस हैं ज़्यादा टाइम तक हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि बहुत सारी फूड की जो सप्लाई है ये पॉसिबल नहीं होता कि विद इन 2 to 3 डेज ये रिमोट एरियाज तक पहुंचाई जा सके। तो इस वजह से ऐसी प्रोडक्ट बनाना मजबूरी भी होती है समटाइम कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बहुत सारे लोग जो हैं उसमें इस तरह फोकस कर रहे हैं कि जो पेस्चराइज्ड मिल्क है दैट इज़ मोर न्यूट्रिशियस एंड दैट इज़ मोर सूटेबल टू ड्रिंक, और इसी वजह से पेस्चराइज्ड मिल्क जो है उसकी एक अपनी